Hello. Hello. A very good afternoon to all my CLAT students. In today's session, I'm just going to start the last minute strategy for the new pattern of the CLAT, that is 2020. As you all know that the legal reasoning that is totally based on the law that we already study. A very good afternoon to all my CLAT students. In today's session, that is the last minute strategy. सर ये कट हो सकता है ना, जो मतलब ये होगा. हेलो. ओके ओके सर, ओके. आई एम जस्ट स्टार्ट. ओके ओके सर. A very good evening to all my class students. Myself Nikkita Singh. I'm an advocate since 6 years and I'm a law faculty also. In today's session, I'm going to start with a last minute strategy of the legal reasoning, which is totally based on the new pattern of the CLAT 2020. Before starting the legal reasoning, we have to understand that what is legal and reasoning. Legal, it simply means that it's totally based on the law, and reasoning in which we have to apply the analytical mind. So legal reasoning is totally we have to apply or analysis the law in a legal way. Okay. Now, first of all, we have to know the law subject which have to become in the CLAT exam. The first one is the law of tort. Second, law of contract. Third is criminal law. Fourth is Constitution of India. And the fifth one is legal aptitude. So before going to the new strategy, we have to introduce that you have to just one thing remind that legal reasoning is never about knowing the law. What it means that आप सब ने क्लैट के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे लॉ के बुक्स पढ़ रखे होंगे, बट इस सेशन में आपको मैं बताऊंगी कि क्या क्या वे हैं कि आपको लॉ दैट इज अ क्लैट 2020 आप इजीली क्रैक कर सकते हैं. सो न्यू पैटर्न, सब बच्चे घबरा गए हैं कि क्लैट का न्यू पैटर्न में क्या होगा, हम कैसे पेपर देंगे. बट मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि न्यू पैटर्न, there is a no drastic change in the CLAT 2020 in the legal reasoning. Now, why? Because the answer is simple. पहले हम लोग का क्या था ओल्ड पैटर्न में सिंपली क्वेश्चंस कैसे होते थे, प्रिंसिपल एंड फैक्ट. प्रिंसिपल totally means that is based on the law that you have already read in your laws book, और उस प्रिंसिपल को फैक्ट में अप्लाई करना होता है. उसके बाद हम लोग को उसमें आंसर देना होता है. बट इस नए पैटर्न में जो कि आपका 28 सितंबर को होने वाला है, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द पैसेज बेस्ड क्वेश्चन. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो पैसेज होगा वो किस बेस पे होगा, उसका क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा. तो मैं आपको बता दूं, जो पैसेज होगा that will be totally cover the legal matter, the legal issue, the public policy, the moral issue and the legal vocab. It simply means जब क्लैट बच्चों लॉ का पेपर है, लॉ एंट्रेंस हम देने जा रहे हैं, तो बट ऑब्वियस जो क्वेश्चंस आएंगे, जो पैसेज आएंगे, वो हमारे लॉ के बेस्ड पे होंगे. तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कैसा पैसेज होगा. जो आपने लॉ का एनालिसिस किया है, जितना आपने लॉ पढ़ा है, उसी बेस पे हम लोग के क्वेश्चंस आएंगे लीगल रीजनिंग. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं पैसेज. ये पैसेज अगर आप
बारीकी से पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है लीगल रीजनिंग का। क्लैट 2020 में आपका बेसिकली 5 पैसेज आएंगे लीगल रीजनिंग में, बट इसमें क्या है, आपका हर एक पैसेज 450 वर्ड्स का होगा। अब 450 वर्ड्स को आप लोग कितना टाइम देंगे, तो दैट्स डिपेंड अपॉन योर रीडिंग हैबिट। सपोज एक बच्चा, उसका रीडिंग हैबिट बहुत अच्छा है, तो बट ऑब्वियस वो एक पैसेज को 3 या 4 मिनट में पढ़ लेगा। बट जिस बच्चे का रीडिंग हैबिट बहुत देर देर से पढ़ता है, तो बट ऑब्वियस उसे 10 मिनट लगेंगे एक पैसेज सॉल्व करने में। बट क्लैट आपका 2 घंटे का पेपर है, तो 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो आपको प्रिपेयर रहना है, रीडिंग हैबिट आपको बढ़ानी है, जिससे कि आप कोई भी पैसेज 4 या 5 मिनट में सॉल्व कर ले। Now we will start a one very important passage that is given in your screen, that is, I will read and you have to listen and see what are the crux and the basic point of this passage. Unlike the US, free speech in India is not absolute. Our constitution, while guaranteeing the freedom of speech and expression, places the reasonable restriction on the basic human right. So this is the first paragraph, which is totally based on the freedom of speech and expression. बच्चों, मैंने ये हाईलाइट किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके टेस्ट में भी ये हाईलाइटेड वर्ड्स आएंगे। मेरे इस हाईलाइट करने का बेसिकली मतलब है कि आप लोग कैसे अपने पेपर में किसी भी पैराग्राफ के क्रक्स पॉइंट को निकाल सकते हैं। So this one first paragraph is totally based on freedom of speech and expression, and it's tell about the constitution. Okay, now comes toward the second paragraph. Journalists are often targeted by the state authorities for their comments on social media. So this paragraph is totally based on the journalists, what journalists are doing in our society. That is about this paragraph. In September last year, a Delhi-based journalist was arrested for his tweet on sculpture at a sun temple in Konark, Odisha. And the another journalist from Manipur was booked under the stringent National Security Act 1980 and jailed for uploading a video on the internet in which he made a remark deemed to be derogatory toward the chief minister of the state. तो सेकेंड पैराग्राफ में मैंने बच्चों आपको जर्नलिस्ट को हाईलाइट किया है। इट मींस दैट ये स्टोरी, दो स्टोरी इसमें जर्नलिस्ट की बता रहा है कि उन्होंने एज अ मीडिया होते हुए क्या किया एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट को। ओके, नाउ comes toward the third paragraph. In December, the Union Ministry of Electronic and Information Technology, the nodal ministry for regulating the matters on information technology and the internet, released a draft amendment to guidelines under the Information Technology Act, which prescribed the certain condition for content hosting the platform to seek the protection for the third party content. Now, this third paragraph, it's tell about what our Union Ministry of Electronic and Information Technology are doing to just prevent or to just restrict our freedom of speech. Okay. Now, the fourth paragraph, the amendment which was brought along to tackle the menace of the fake news and to reduce the flow of obscene and illegal contents on the social media, seek to mandate the use of automated filters for the content takedown on the internet platform and requires them to trace the originator of that information on their service. And this traceability requirement is believed to be targeted as messaging app like WhatsApp, Signal, and Telegram. So, student, this paragraph it's tell about the amendment. What amendment means? Amendment का simply मतलब होता है the changes which comes in our law, that is called amendment.
So this paragraph is basically tell about the WhatsApp, Signal, Telegram. These are the social media in which people interact with to each other. Now, apart from the state authority, content sharing and social media companies take down content in tandem with their community standard and terms and conditions. This is often arbitrary and inconsistent. So, this particular paragraphs tell about the social media companies. ऐसी कंपनी जो कि सोशल मीडिया को हैंडल करती हैं कि उन्हें क्या चीज लोगों को शो करनी चाहिए, क्या चीज नहीं शो करनी चाहिए. Okay, now next paragraph. We believe that the draft amendment to the rules that regulate the platform liability undermines free speech and privacy right of Indians in the online world while promoting private censorship by companies. Having said that, acknowledging the problem of circulation of illegal content, legitimate access to law enforcement, and disinformation on the internet, law should maintain governance structure and grievance mechanism on the part of intermediaries, enabling quick takedown to content determined as illegal by judiciary or appropriate government agency. In this paragraph, I just highlighted the last two lines that say that enabling quick takedown of the content determined as illegal by judiciary. It means that in that paragraph, the judiciary come. Judiciary, that is the third pillar of the government. Judiciary अब freedom of speech में क्या अपना रोल कर सकती है, that is given in this paragraph. The filter bubble effect, where users are shown similar content, result in reader not being exposed to opposing view, due to which they become easy target of disinformation. So this paragraph is simply tells about the filter bubble. The filter bubble means social media में जो भी लोग अपने views को रखते हैं WhatsApp पे, Twitter पे, तो उन्हें क्या चीज बोलनी चाहिए, क्या चीज नहीं बोलनी चाहिए, that is given in this paragraph. Now, tech companies must rethink their internal policy to ensure that self-initiated content takedowns are not arbitrary and users have to right to voice their concern. Now, coming to the last paragraph, that is government agency should work with the internet platform to educate users in identifying the disinformation to check its spread. And lastly, government should adhere to constitutionally mandated principle and conduct the multi-stakeholder consultation before drafting the internet policy to safeguard the varying interest of interested party. So students, this is the only paragraph. सबसे पहले मैंने आपको न्यू पैटर्न में बताया कि आपका पैसेज बेस्ड पैराग्राफ क्वेश्चन होगा. अब पैसेज आपके सामने है. इस पैसेज में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अब पैसेज में से आपको क्या करना है, प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करना है. ओके, अब इतना हम लोगों ने 5 पैराग्राफ पढ़ा पीपीटी के थ्रू. इसमें क्रक्स पॉइंट हमने यही निकाला कि दैट पैराग्राफ इज टोटली बेस्ड ऑन Article 19 of the Constitution that talk about the freedom of speech. Okay, that is given in Article 19(1) Clause A in the Constitution of India 1950. Okay, अब आप लोगों ने प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई कर लिया. अब इसी प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए आपको ये चीज क्वेश्चन में अप्लाई करना है और आपको आंसर देना है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर. The first question that is on the screen is that which of the following views can be correctly attributed to the author of the passage? First question में author मतलब जानना चाहता है कि इस passage को पढ़ के आपने क्या समझा. The options are A, right to free speech must be protected. B, right of free speech can be restricted by government agency. And the third, the author does not have any opinion about the right of free speech. And the fourth one is none of the above.
सो जो बच्चे ने सिंसियरली पढ़ा होगा एक क्विक वे में इसका आंसर दे देगा. दैट इज द राइट आंसर वुड बी द राइट ऑफ फ्री स्पीच मस्ट बी प्रोटेक्टेड. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई. सो लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन बी. जो मैंने इसमें वर्ड हाईलाइट किया है दैट इज अ गवर्नमेंट एजेंसी. इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी को हाईलाइट कर रहा है. बट हमने पैसेज में क्या पढ़ा? पैसेज में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बहुत कुछ दिया है, सिर्फ पर्टिकुलर गवर्नमेंट एजेंसी के बारे में नहीं गिवन है. सो बी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता. सी में क्या गिवन है? द ऑथर डज नॉट हैव एनी ओपिनियन अबाउट द राइट ऑफ फ्री स्पीच. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज ऑथर ने तो भाई पूरे पैराग्राफ में फ्रीडम ऑफ स्पीच की ही बात की है. सो थर्ड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग and D is none of the above. That is absolutely wrong. Why? Because none of the above हो ही नहीं सकता. जब पैसेज हम लोग का फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बोल रहा है तो हम इसमें नन कर ही नहीं सकते. So the correct answer is right of free speech must be protected. Why? Because the reading of given passage clearly indicate that the author support right of free speech. Because whether he talks about the journalist, information technology, government agency, WhatsApp, Instagram, etc. This indicates that he want to tell you about the freedom of speech. So, question 1 का आंसर क्या है? Right of free speech must be protected. Now, the second question, the two words which I highlighted is that social website and the second one is Twitter. Now let's start with the question. If a social website, say Twitter, uses automated filter to take down personal details posted by a celebrity of people who sent her rape threats and obscene picture in order to expose them, but does not take down the obscene content directed at the celebrity, would such action be in the line with the amendment discussed by the author? That is a question. Question is given in the last line. Would such action be in the line with the amendment discussed by the author? क्या ऑथर ने किसी भी पैराग्राफ में जो कि गिवन है ट्विटर पे कुछ कहा है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो. बिकॉज किसी भी पैराग्राफ में एक पर्टिकुलर सोशल साइट ट्विटर के बारे में इतना ब्यौरा नहीं दिया है. सो द आंसर विल बी बी, दैट इज नो. ओके, एंड सी एंड डी कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज लीगल में कभी भी प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस हम टिक मार्क नहीं करेंगे. सो सेकंड का आंसर सिंपली आपका नो दिया है. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन. According to the author, which of the following method ensures better efficacy of new laws proposed to be enacted in India? So that question is a tricky question. You have to think what the author want to say. उसने पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है टू ensure the better efficacy of the new law that is proposed in India. The first option, publicly releasing draft of proposed law and inviting the objection comment from the concerned person. फर्स्ट ऑप्शन में ऑथर कहना चाहता है कि जो भी प्रपोज्ड लॉ मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है, it should be in the public policy. That is, it should be come under the public policy. And for that thing, अगर डिबेट होना चाहे तो ऑब्जेक्शन एंड कमेंट्स आर इनवाइटेड फ्रॉम द कंसर्न पर्सन. कंसर्न पर्सन मीन्स उस फील्ड से हम कंसर्न पर्सन का भी हम लोग व्यू ले सकते हैं. दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन, forming a special committee to review the effectiveness of the proposed law. It means that B section में एक simply special committee की बनाने की बात कह रहा है. And special committee is but obvious, that is basically for the freedom of speech and expression. C1, extensive debate on the proposed law by the legislature. It means that उस topic पे debate हो लोगों के द्वारा.
and D is all of the above. अब इस ट्रिकी क्वेश्चन में हम देखेंगे सबसे बेस्ट मेथड बोला गया है। तो किसी भी फील्ड में अगर हम उसके कंसर्न पर्सन को बुला के उसका व्यू लेते हैं तो बट ऑब्वियस हम लोग को पॉजिटिव व्यू मिलता है। सो दैट्स व्हाई ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज पब्लिकली रिलीज ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ एंड इनवाइटिंग द ऑब्जेक्शन कमेंट फ्रॉम द कंसर्न पर्सन। Why not B and C? The answer is simple. B में सिर्फ एक स्पेशल कमिटी की बात कहता है और D में सिर्फ डिबेट की बात कहता है। जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं इससे आप सिंपली समझ सकते हैं कि किसी भी लॉ को बनाने में सिर्फ डिबेट या स्पेशल कमिटी ही नहीं हो सकती। इसके लिए हमें कमेंट्स चाहिए फ्रॉम द कंसर्न पर्सन और जो भी टॉपिक पे हम लॉ बनाते हैं इट शुड कम अंडर द पब्लिक पॉलिसी। दैट्स इट। Now, next question. Judicial review is the process wherein validity of the laws can be tested by judiciary. Which of the following option is correct? अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक वर्ड आता है जुडिशियल रिव्यू। अब जिन बच्चों ने लॉ पढ़ा है उनको दिमाग में आ जाएगा कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है। अदरवाइज आप जुडिशियल रिव्यू को सर्च करोगे, अपने मन में सोचोगे, इसको लॉ में अप्लाई करोगे, तब जाके आपको इसका आंसर मिलेगा। बट सिंपली judicial review, what is this? The review which is done by the judiciary is called judicial review. Now इसमें पूछा गया है कि जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत इसमें से कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो कि ऑथर को सपोर्ट करता है। द फर्स्ट वन इज the author support the concept of judicial review. The author does not support the concept of judicial review, can't say, and judicial review indicate the independence of judiciary. तो बच्चों अगर आप लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा होगा तो मैंने एक लाइन हाईलाइटेड की थी कि जब जुडिशरी अपने फील्ड से हटकर कुछ काम करती है इट मीन्स दैट जुडिशरी का बेसिकली काम होता है जस्टिस देना। बट जुडिशरी जब लेजिस्लेटिव फील्ड में इंटरफेयर करती है, एग्जीक्यूटिव फील्ड में इंटरफेयर करती है, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म। तो पैराग्राफ में जुडिशियल रिव्यू की बात हुई थी, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सबसे करेक्ट है। तो बट ऑब्वियस इसका आंसर होना चाहिए द ऑथर सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ओके, एंड सी कांट से हम प्रोबेबिलिटी में आंसर नहीं देंगे, सो दैट्स व्हाई सी कैन नॉट बी द आंसर, एंड डी इज सिंपली द डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो हमें डेफिनेशन नहीं पूछा गया है, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है कि क्या ऑथर इस पैराग्राफ में जुडिशियल रिव्यू को कंसर्न लेता है कि नहीं लेता है। सो फॉर दैट क्वेश्चन द ए वुड बी द राइट आंसर। नाउ the last question, that is whether fundamental right in India is absolute or not. That question comes from the first paragraph of this passage, क्योंकि फर्स्ट पैसेज में ही दिया था कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है एंड दैट इज अ फंडामेंटल राइट, एंड इन इंडिया फंडामेंटल राइट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। व्हाई? द आंसर इज सिंपल. In India, there are certain restrictions which is attached to the fundamental right. That's why fundamental right is not an absolute right. अगर restriction नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि fundamental right absolute right है। But India में restrictions हैं freedom के साथ, जैसे example freedom of speech and expression, हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है, बट हमें ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे कि थर्ड पर्सन का रेपुटेशन डाउन हो। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द restriction which is imposed on the citizen of India. So that's why the answer should be whether fundamental right in India is absolute or not. The answer would be that is no, it is not absolute. So B would be the correct answer. So बच्चों इस तरह आपके पैसेज आएगा, 5 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको सॉल्व करना है। आपको बेसिकली अपने माइंड में क्या रखना है कि कोई भी पैसेज गिवन हो क्लैट में, आपको उस
पैसेज से प्रिंसिपल को निकालना है। जैसे ओल्ड पैटर्न में क्या होता था, ओल्ड पैटर्न में सिंपली आपका एक प्रिंसिपल गिवन होता था। प्रिंसिपल जो कि आप लोगों ने लॉ की बुक्स में पढ़ा है, जो कि आप अपने स्कूल या कोचिंग में पढ़ते थे, और उस प्रिंसिपल को आपको एज इट इज फैक्ट में अप्लाई करना है। बट इस पैटर्न में, दैट इज अ क्लैट 2020 पैटर्न में, आपको पैसेज से प्रिंसिपल निकालना है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्लैट का पैटर्न चेंज हो गया, हम लोग घबरा जाएंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चंस। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लैट का जो नया पैटर्न है वो सिर्फ आपका वोकैब चेक करना चाहता है, आपकी रीडिंग हैबिट को चेक करना चाहता है। तो बेसिकली कोई भी पैसेज होगा, आपको सबसे पहले आपको रीडिंग हैबिट अपनी स्ट्रांग बनानी है, और उस पैसेज से आपको एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आए तो उसको दोबारा पढ़िए, और दोबारा पढ़ के उसमें से जस्ट हाईलाइट करिए कि ये पैसेज किसके बारे में कह रहा है। अगर आप उस पैसेज को 2 बार पढ़ेंगे तो आपको सिंपली मालूम चल जाएगा कि इस पैसेज में इस प्रिंसिपल के बारे में बोल रहा है। प्रिंसिपल मींस इस लॉ के बारे में बोल रहा है। सो फर्स्ट थिंग, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल फ्रॉम द गिवन पैसेज। अब क्या करना है, उस प्रिंसिपल को हमें फैक्ट में अप्लाई करना है। फैक्ट जो कि कहानी बताता है। कहानी मतलब सपोज कोई भी आपको कहानी उस प्रिंसिपल से रिलेटेड होगा, अब उस प्रिंसिपल को उस फैक्ट में अप्लाई करना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी अपना प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना है। बच्चे यही मिस्टेक कर जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर जाते हैं कि जो उन लोगों ने लॉ पढ़ा होता है, जो उन्होंने टीचर्स ने उनको पढ़ाया होता है, वही लॉ वो फटाक से अप्लाई कर देते हैं क्वेश्चन पे और आंसर टिक मार्क कर देते हैं। बट बच्चों, अब की बार जो पेपर है इसमें आपको बच्चों अच्छे से पैसेज को एनालिसिस करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, और उस प्रिंसिपल को ही फैक्ट में अप्लाई करना है। अगर प्रिंसिपल यस बोलता है तो यू हैव टू अप्लाई यस, अगर नो बोलता है तो नो अप्लाई करना है। कभी भी ध्यान रखिएगा, आपको अपना प्रायर नॉलेज नहीं अप्लाई करना है। ओके, नाउ हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। बच्चे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? मान लीजिए एक पेज का पैसेज है तो बच्चे घबरा जाएंगे। नहीं, इसमें आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, पैसेज को बहुत ही केयरफुली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और उसमें से आप जो जो लॉ के टर्म्स उसमें गिवन है उस लॉ के टर्म्स को आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। और हाईलाइट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, अब उस वर्ड्स को आपके माइंड में रखना है। ओके, अब उस माइंड में जो लॉ के वर्ड्स हैं अब रख के आपको अब क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चंस कभी भी बच्चों एक बार पढ़ के आंसर मत दीजिएगा। क्वेश्चंस को जैसे जैसे आप लोग देखेंगे, वर्ड्स को कैच करिएगा जो आपने पैसेज में फाइंड आउट किया है कि ये वर्ड कौन से क्वेश्चन में मैच करता है। उस हिसाब से आप लोग उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं पैसेज के थ्रू। ओके, the second one, try and break down the principle into the smaller parts. इस बात को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपके पैसेज बहुत बड़े बड़े होंगे, बट उसको देख के घबराना नहीं है। मैंने क्या बोला है आपको, हर एक पैसेज को आप स्मॉल स्मॉल में एक ब्रेक करिएगा और उस पर्टिकुलर लीगल टर्म या फैक्ट को हाईलाइट करिएगा। लीगल फैक्ट या लीगल टर्म्स को हाईलाइट करने से क्या होगा, आपका एक प्रिंसिपल बन जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल वही होगा जो आपके डे टू डे लाइफ में होता है, जो आपके न्यूज़पेपर में आता है। जो बच्चा सीरियसली पेपर पढ़ता होगा, न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसके लिए पैसेज दैट इज क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो इसीलिए पैसेज को आप लोग को क्या करना है, स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करना है और उसमें से आपको लीगल टर्म्स को कैच करना है। अगर लीगल फैक्ट बन जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर लीगल फैक्ट नहीं बन रहा है, प्रिंसिपल नहीं बन रहा है, तो आपको जस्ट लॉ के टर्म्स को साथ में रखना है। एंड द लास्ट वन, रीड थ्रू द ईच क्वेश्चन केयरफुली।
अब क्वेश्चंस को मैंने पहले भी बताया है, कभी भी एक बार पढ़ के सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चंस में क्या है, आपको क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, फिर देखिए इस क्वेश्चन का जो ये एक पर्टिकुलर वर्ड है किस पैसेज से मैच करता है। उसके बाद आप लोग उसमें दोबारा पैसेज को पढ़ के फिर उसका आंसर दीजिए। अगर आप इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यकीन मानिए लीगल क्वेश्चन में अगर आपके 40 क्वेश्चंस भी आते हैं तो यू विल क्रैक 40 क्वेश्चन बाय अप्लाइंग as it is principle in the as it is fact. Now, preparation strategy. प्रिपरेशन के अंतर्गत आपको देखिए इस साल का जो पैटर्न है वो बेसिकली पैसेज है। जितना पैसेज आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट होगा आपका, आप इजीली पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। आप सब जानते हैं आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड देयर इज आल्सो अ नेगेटिव मार्क इन द क्लैट 2020। बट इस एग्जाम पैटर्न में बच्चों आपको बेसिकली 3 सब्जेक्ट पे मेन फोकस करना है। द फर्स्ट वन इज लीगल रीजनिंग, द सेकंड वन इज logical reasoning, and the third one is English language. Why I am saying these 3 subjects? Because these 3 subjects is totally based on the passage questions. That's why करंट अफेयर में मे बी आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है या करंट अफेयर में भी पैसेज हो सकता है, बट रीजनिंग, लीगल और इंग्लिश में बट ऑब्वियस पैसेज होंगे और हर एक पैसेज मिनिमम 300 to 450 वर्ड्स का हो सकता है। ओके, द सेकेंड पॉइंट, रिवाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। अब बच्चे इस साल का पेपर पैटर्न देख के प्रीवियस ईयर पेपर को छोड़ दे रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत कर रहे हैं। बच्चों, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से आपको बेटा प्रिंसिपल के बारे में मालूम चलेगा कि क्या क्या प्रिंसिपल के क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो जो बच्चा आने वाला क्लैट का पेपर दे रहा है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के लीगल पोर्शन को अच्छे से पढ़ डालिए। इसका फायदा क्या है, लीगल क्वेश्चंस के आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ेंगे तो आपको एटलीस्ट प्रिंसिपल के बारे में मालूम होगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लॉ में। बेटा लॉ के क्वेश्चंस कभी फिक्स नहीं होते। जो सब्जेक्ट आपके गिवन है दैट इज टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल एप्टी एंड आईपीसी, इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट जो आपका ये जो 5th पोर्शन है दैट इज अ लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड इज द वेरी वास्ट सब्जेक्ट। इसमें क्या है बच्चों, आपका लीगल एप्टीट्यूड में आपका लीगल मैक्सिम पूछ सकते हैं, लीगल फैक्ट्स पूछ सकते हैं, लीगल टर्म्स पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या है आपको और वेरियस लॉ सब्जेक्ट भी पूछ सकते हैं, जैसे आपके इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस आ सकते हैं, पॉक्सो एक्ट के आ सकते हैं, आप आईपीआर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनके भी क्वेश्चंस आएंगे और कैसे क्वेश्चंस, बट ऑब्वियस जो आपके डे टू डे लाइफ में पेपर में आते रहते हैं वही सारे क्वेश्चंस इसमें आएंगे। सपोज इस साल जितने भी फेमस केस है लॉ से रिलेटेड, बट ऑब्वियस उसमें से भी आपका पैराग्राफ पूछा जा सकता है। बट बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, पैसेज सिर्फ लॉ से रिलेटेड होगा, बिकॉज बट ऑब्वियस आप एक लॉ एंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसमें आपके लॉ के ही पैसेज होंगे। एंड द थर्ड वन इज सैंपल क्वेश्चंस एंड मॉडल पेपर। एक बच्चों कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़े निशान। इसका मतलब जितना आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, जितना आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ही आप लोग को पेपर में मजा आएगा और आप इजीली टाइम को मैनेज करके आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द सक्सेस मंत्रा, how to achieve the CLAT 2020. The first one is read faster, comprehend simultaneously. What it means? Read faster का ये मतलब नहीं है कि आप फटाफट 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 किसी भी पैसेज को पढ़ लेंगे। No. Read faster
चैप्टर का मतलब क्या है बच्चों? आप सब जानते हैं आपके क्लैट एग्जाम में आपके कितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आपके साथ होंगे जो कि एग्जाम दे रहे होंगे, तो उनके साथ आपको compete करना है. So you have to be faster than your competitor. और ये तभी पॉसिबल हो सकता है सपोज जब आपको पैसेज को क्विकली रिवीजन करना आ जाए, क्विकली पढ़ना आ जाए. और ये तभी पॉसिबल है जब आपका अच्छे से प्रिपरेशन होगा. और चाहे कोई सा भी पैसेज आए, कोई सा भी प्रिंसिपल आए, यू हैव टू बी स्टिक ऑन द प्रिंसिपल व्हाइल डूइंग एनी क्वेश्चन. कई बार बच्चे क्या करते हैं, प्रिंसिपल कुछ और रहता है, उनके माइंड में कुछ और चलता है कि यार ये तो प्रिंसिपल हमें टीचर ने ऐसा पढ़ाया था, टीचर कभी गलत नहीं हो सकता. तो वो टीचर का प्रिंसिपल क्या करेंगे, फैक्ट में अप्लाई करेंगे और आंसर दे देंगे. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये गलती आप लोग को नहीं करना है, क्योंकि प्रिंसिपल में मे बी वो लॉ को चेंज करके आपके सामने पेश कर दें, तो बेटा आपको उस प्रिंसिपल को ही फैक्ट में अप्लाई करना है. कभी भी आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो लॉ हमने पढ़ा है सिर्फ वही लॉ को अप्लाई करना है. एक कंक्लूड वे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्लैट 2020 इज नॉट अ न्यू पैटर्न. इसमें सिंपली क्या है, आपका एक लीगल वोकैब देखना चाहते हैं कि आप कितने स्मार्ट हैं लीगल वर्ड्स को कैप्चर करने में, लीगल अवेयरनेस को जानने में. क्लैट क्या है, एक लॉ एंट्रेंस का टेस्ट है. तो लॉ एंट्रेंस में बेसिकली देखा जाता है कि आपको कितना लीगल अवेयरनेस है. और लीगल अवेयरनेस सिर्फ एक लॉ की बुक पढ़ के नहीं आती बच्चों. इसके लिए आपको डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट हमारी कौन सी पॉलिसीज बना रही है हमारे लिए, वो पॉलिसी कब अमेंड होगी, कब वो लागू होगी, इस सब चीज को हमको देखना है. तब जाके अगर हम पैसेज पढ़ते हैं, अगर हमें वो सारी न्यूज रिमाइंड रहती है, तो बट ऑब्वियस हम उस क्वेश्चन को इजीली वे में कर सकते हैं. अब उस पैसेज को पढ़ के जो प्रिंसिपल निकलता है, अगर वो प्रिंसिपल आपको स्ट्राइक होगा कि अरे यार मैंने उस पेपर में इस प्रिंसिपल को पढ़ा था, इस लॉ को मैंने पढ़ा था, तो बात मानिए आप उस क्वेश्चन को, उस पैसेज को इजीली कर सकते हैं. बट अगर आप सोचने लग गए कि ये प्रिंसिपल मैंने ऐसे पढ़ा था और इसका आंसर ये था, और वही आंसर अगर आप अपने कंपटीशन एग्जाम में अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर गलत होगा. तो अगर आपको क्लैट 2020 क्लियर करना है, तो एक कंक्लूड वे में आप टिप्स में देख लीजिए कि आपको क्या क्या करना है. सिंपली पैसेज को केयरफुली पढ़ना है. ओके, पैसेज को एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, दैट्स इट. 2 टाइम इज एनफ. अब हर एक पैराग्राफ को तोड़ लीजिए. अगर पैराग्राफ एक वन वे में है तो उसको आप अपने हिसाब से अलग अलग तोड़िए, और फिर उस पैसेज में से लीगल टर्म्स, लीगल फैक्ट या लीगल वोकैब है उसको अंडरलाइन करिए. ओके, उसके बाद अब आप क्वेश्चंस को पढ़िए. अगर एक पैराग्राफ में 5 क्वेश्चंस है तो उन पांचों क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से पढ़िए. अब उन पांचों क्वेश्चंस को देखिए, एक एक क्वेश्चन को उठा के कि इस क्वेश्चन का ऑथर क्या चीज कहना चाहता है, कौन सा पैराग्राफ इसमें मैच करता है. अगर कोई लीगल टर्म उस क्वेश्चन से मैच करती है तो बट ऑब्वियस उस क्वेश्चन का आंसर उसी पैराग्राफ में गिवन होगा. तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली उस क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ के, दो बार पढ़ के उस प्रिंसिपल अप्लाई करिए उस फैक्ट में और आंसर टिक मार्क करिए. अगर आप इस चीज को हमेशा माइंड में स्टिक करेंगे कि आपको प्रिंसिपल ही अप्लाई करना है फैक्ट पे, तो विश्वास मानिए आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और आप इजीली अचीव कर सकते हैं क्लैट दैट इज 2020. नाउ एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि क्लैट का जो न्यू पैटर्न है इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है. ये बेसिकली क्या है, आपको बस अब पैसेज के थ्रू प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करना है. ओल्ड पैटर्न में क्या होता था, प्रिंसिपल एज इट इज दे देता था. अब मान लीजिए जिस बच्चे ने कुछ लॉ नहीं पढ़ा है, वो डायरेक्टली क्लैट का एग्जाम दे रहा है,
तो वो प्रिंसिपल को बस रट के फैक्ट में अप्लाई कर लेगा। बट जो न्यू पैटर्न है पैसेज बेस्ड में क्या है, मान लीजिए अगर आप लोगों ने प्रिंसिपल नहीं भी पढ़ा है तो पैसेज के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पैसेज में क्या प्रिंसिपल होगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप उस प्रिंसिपल को इजीली अपने आंसर में टिक मार्क कर सकते हैं। Okay, so last time I would like to say that all the best for the CLAT 2020 and hope for the best.